Hello and welcome to Toppers Corner. I am Dr. Dinesh Nagpal, Chief Mentor, Career Compass. As all of you know, Topper Corner is a show. It's a kind of chat show or talk show, whatever you may call it, where we invite students from different national level institutes like IIMs, NLUs, and other top level institutes who are pursuing courses like management, law, media, and many other courses. So, what has been their career? What has been their experience? We are today we have one of our students with us who is currently studying at IIM Jammu. इससे पहले कि मैं उस बच्चे का इंट्रोडक्शन दूं आपको, मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल पर जिस पर हम लगातार आपको टॉपर से मिलवा रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आई जो इसमें बटन है वो दबा दें और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि जितने लोग और हैं जो एक नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में जैसे या किसी के बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, उनको ये पता लगे कि वहां पर जाया कैसे जाता है। तो आज हमारे साथ हैं अभिषेक। अभिषेक इज अ सेकंड ईयर इज गोइंग टू सेकंड ईयर इन द पीजीपी प्रोग्राम एट आईएम जम्मू। जैसे मैंने आपको बताया बहुत बार कि अगर किसी कॉलेज के आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ होता है, तो वो भारत सरकार के उस चीज के, चाहे वो मैनेजमेंट हो, लॉ हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, उसके प्रीमियर इंस्टीट्यूट होते हैं। टेक्निकली जो सरकार की नजरों में जो आईआईटी की स्थिति है वही आईएम की स्थिति है, और जो आईएम की स्थिति है वही नेशनल लॉ स्कूल की स्थिति। वेलकम टू द शो अभिषेक। Thank you, sir. Well, Abhishek, it is really good, speaking to you. Abhishek, वैसे तो आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट के चूंकि हम आप बहुत सारे लोग हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से भी होते हैं, तो मैं चाहूंगा आप इसको बायलिंगुअल कर लें इंटरव्यू, ठीक है? Sure, sir. ओके अभिषेक, थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताएं। Sir, I am basically from Hisar, Haryana. थोड़ा लाउडर बोल दीजिए। I am basically from Hisar, Haryana. I passed my matriculation from very local school, but I got 98.2 percentage marks. Very good. After that, I appeared for the entrance examination of Chaudhry Charan Singh Haryana Agriculture University, which is one of the Asia's largest university in agriculture. It's a wonderful university. And then I got fourth rank out of about 4,500 students, and I got admission into BSc Honors Agriculture 6-year program. Very good. During my graduation, I have participated in many activities, like in games. I have played 2 Nord-Zone hockey tournament, and also in athletics, I have played All India Inter-University Cross Country Championship. I have also participated in NCC, and I got C certificate there. तो आप तो फौज में भी जा सकते हैं सीधा ही, हाँ? Okay. Yes, sir. Then, sir, during my graduation, I was there was my senior, from which I was inspired to go in MBA field, sir. He got admission into IIM Ahmedabad. You're talking about Ashish Bura. Yes, sir, Ashish Bura, sir. Ashish Bura को आप इंटरव्यू करने वाले हैं बहुत छोटे। Yeah, it's great, sir. So, sir, then from that inspiration, I prepared for the CAT examination, and I was not able to get into IIM Ahmedabad, but sir, I was able to get into IIM Jammu, sir. बट अब देखिए, आई थिंक जो मेरा अपना सोच है, कोई भी कॉलेज, क्योंकि IIM अहमदाबाद बहुत बड़ा नाम है, मैं खुद पढ़ा हूँ, आप जानते हैं। Yes, sir. आई वाज अ स्टूडेंट देयर, तो अगर मैं स्टूडेंट तो बहुत पुराना है। लेकिन चीज ये है कि जो भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट होते हैं, जब गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट के आगे इंडियन का टैग लगाती है, तो Yes, उस कॉलेज के अंदर, चाहे वो पहला बैच हो, चाहे वो किराए की बिल्डिंग में चले, उस कॉलेज के बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा होता है, बिकॉज दी करिकुलम एंड दी पेडागोजी, पढ़ाई का तरीका वो ट्रूली इंटरनेशनल, ठीक है? Yes, sir. थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड आप शेयर करिए। Sir, regarding my family background, sir, my father is a government servant. He is working as an auditor. My mother is a housewife, and sir, we are 4 brothers and sisters, and I am the youngest one, sir. ओके, ग्रेट। Yes, sir. तो बीएससी एग्रीकल्चर आपने 10th के बाद सीधा 6 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद मैंने बहुत सारे बच्चों की जो टेंडेंसी देखी है, वो ये देखा है, अधिकांश लोग तो बैंक में लगना चाहते हैं कि क्योंकि बैंक में उनको लगता है Yes, sir. कुछ लोग फिर सीड्स कंपनीज और इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने लगते हैं। लेकिन मैंने ये नोटिस, फिर कुछ लोग एमएससी करते हैं हॉर्टिकल्चर में, इसमें उसमें पीएचडी करके किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्राई करते हैं।
जबकि एमबीए में बहुत स्कोप है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के, एग्री के स्टूडेंट के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। आपने एक तो उन सब से हटके पढ़ा, सोचा एमबीए करने का, वो भी बजाय एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के आप एक रेगुलर पीजीपी प्रोग्राम कर रहे हो। व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? ओके सर, कमिंग टू द एग्रीकल्चर सर, लाइक मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स थॉट सर, कि बच्चे को बनना क्या चाहता है बच्चा। अब वो टाइम नहीं रहा कि पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा तेरे को बीटेक करनी है, तेरे को एमबीबीएस करनी है। अब बच्चे को खुद को सोचना पड़ता है कि मेरे को जाना कहाँ पे एक्चुअली। ओके सर, देन ये बात सच है कि 10th में इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे को। मेरे फादर ने कहा बीएससी एग्रीकल्चर करो, देन आई गॉट एडमिशन इनटू चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सर। बट आफ्टर दैट देयर आई मेट विद मैनी फ्रेंड्स सीनियर्स। फ्रॉम देयर मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे को खुद को सोचना चाहिए कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। उसके बाद में मैंने एमबीए करने की सोची सर। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कुछ डाइवर्स थिंग्स को सोचना था वो सर। बिल्कुल सही है एमबीए, लाइक आपका पॉइंट सही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, व्हाई नॉट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाई अ पीजीपी? आपने ओके, आई एम जम्मू एग्री बिजनेस ऑफर नहीं करता है, तो क्या ये आपको इससे कोई नुकसान होगा या कोई फर्क नहीं? नहीं सर, नुकसान इस तरह का कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि मैं अगर हम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आई गॉट नॉलेज फॉर अ स्पेसिफिक थिंग। हम्म। बट व्हेन आई एम गोइंग टू जनरल एमबीए, वहां मेरे को हर चीज का एक्सपोजर होगा, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, इन ऑल द फील्ड एरियाज। एंड कमिंग टू वन थिंग, द मोस्ट important is that like agriculture is the backbone of everything sir. Yes, We yes. know all that. So everything is related to agriculture. So my thought process was, why not explore all the other things? Wonderful. Okay. Yes sir. If I am doing general MBA PGP program, so there I can explore each type of the company, and I have better chance to go in other companies also, and as well as agriculture company also uh, supports such type of thought process sir. वेरी गुड, बहुत गुड। तो यू थिंक, हाँ मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि आपके लिए पीजीपी करना कोई नुकसान का नहीं, बल्कि फायदे की बात है कि बेटर ऑप्शन। तो उसने एक लड़की का इंटरव्यू करा था भविष्य में। तो उसने मुझे कहा कि सर मैं एनएलयू में हूँ। तो शी सेड सर मैं वहाँ जब गई तो बहुत बड़े बड़े शहरों से लोग आए हुए थे, और उनके स्कूल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी, मुझे ऐसा लगा मुझे होना चाहिए था, पर थोड़े दिनों में मैं बिल्कुल कंफर्टेबल थी। What is your experience vis-a-vis your batch or peer group in IIM Jammu? आपको लगता है आप उनसे बराबर है, उनसे ऊपर है, या कुछ प्रॉब्लम? ओके सर, सो सर बेसिकली कभी कभी मेरे को लगता है कि हाँ, स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन व्हेन यू आर आपकी गोइंग आपकी तो हो टू, नहीं सकती थी ना। यस सर, तो सर, स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, बट सर मेरी स्कूलिंग थी लाइक एन गवर्नमेंट स्कूल सर। सो अगर मेरे जैसा बच्चा कहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकता है, तो मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट वहां एडमिशन ले सकता है। जो मेन चीज है वो करती है आपकी डिजायर। इफ यू हैव बर्निंग डिजायर्स, देन यू कैन डू एनीथिंग। that I can vouch for you। आपकी desire, I have seen your desire। Carry on। थैंक यू। हाँ एंड बताइए। सर ऑल्सो सर, coming to the peers, there are from different regions, almost every state covered by students of IIM Jammu. And also sir, there is not, it is not specific that कि हर बच्चा कोई गांव से आ रहा है, कोई शहर से आ रहा है, हर प्रकार के बच्चे वहां पे आए हुए हैं। So MBA is like a peer to peer learning program sir. तो सर हम ये बात नहीं बोल सकते हैं कि गांव का बच्चा है तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकता। हर बच्चा यहाँ पे आ सकता है और बहुत कुछ सीख सकता है सर। बहुत good। पर अच्छे में जो प्रोग्राम होता है या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो काफी एक्सपोजर देता है। यस सर। आईआईएम जम्मू में पिछले एक साल में आपने ऐसा क्या सीखा which you think was transformational for you, आपको पूरा चेंज कर दिया, has made you a better confident smart young person? ओके सर, सो सर देयर वाज वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लाइक सर, अब कि पढ़ाने का तरीका क्या होता है।
वहां पे जो पढ़ाया जाता है इन द प्रैक्टिकल सेंस, वी लर्न एवरीथिंग इन अ प्रैक्टिकल सेंस, लाइक सर वी डू प्रेजेंटेशंस, वी डू केस स्टडीज। सो सर हम प्रैक्टिकली अगर किसी चीज को करते हैं तो उससे हम बहुत चीज सीखते हैं। सो सर अदर इंस्टीट्यूट आई डू नॉट नो, बट सर बहुत सी जगह ऐसा होता है कि थ्योरेटिकल पढ़ लिया, स्कूलिंग में हम जैसे थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, बट सर at this platform in IIM Jammu, I have learned that how to apply the in practical world, sir. If you are applying in practical world, then you can gain a lot of things. So sir, मेरी स्पीकिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी, हो गई है IIM Jammu में आने के बाद। कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है सर। Great, that's good. और ये शायद ना लोग बहुत लोग समझते नहीं है कि जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे इंडियन लेवल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल लॉ स्कूल, इनका जो सेटअप ऑफ पढ़ाई है, जिस तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके का रहता है। मैंने ऐसा भी सुना कि आई एम Yes sir. स्कूल में काफी गेस्ट स्पीकर आते हैं, कॉर्पोरेट के लोग आते हैं आपसे इंटरेक्ट करने। हाउ फार इज दैट ट्रू? Yes sir, it is 100% true sir. We have HR conclave in the last this year sir, and also there is CEO conclave. So sir, from the different industries, like sir, Geo, the CEO of Reliance Jio was also with us. अच्छा, ओके, So sir, हमसे हमारे साथ बात होती है, बिल्कुल सारा कम्युनिकेशन बिल्कुल वन टू वन कम्युनिकेशन रहता है सर। सो एचआर, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज के एचआर आते हैं, सीईओज आते हैं, और उनसे बहुत चीज, उनके एक्सपीरियंस से बहुत चीज सीखने को मिलती है सर हमें। अच्छा, हाउ इज लाइफ एट आई एम जम्मू? आई एम जम्मू में जिंदगी कैसी है इन टर्म्स ऑफ, मैं कहूँगा, लाइब्रेरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड, हॉस्टल, ओवरऑल इंटरमिंगलिंग ऑफ द टीचर्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट लाइफ की क्वालिटी कैसी है? सर क्वालिटी इज वेरी ग्रेट सर, एंड रिगार्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक सर जब हम गए थे वहां पे तो ऐसा लग रहा था कि ये हम कहाँ आ गए हैं। अच्छा, But sir, starting phase, due to the starting phase of this campus, we have seen that it is growing at a faster rate, sir. And आज हमें यूं लगता है कि हाँ, हम सही जगह आए हैं। हमने सोचा था, हाँ, यस सर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खुद अपनी आंखों से बनते हुए देखा है सर। और आज आप अगर जब IIM जम्मू की साइट पे जाके देखोगे तो वहां आपको अलग ही चीज दिखाई देगी। मतलब मन लगता है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेस की फैसिलिटी सबसे बेस्ट, वाईफाई फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, there is 24-hour library open, and classrooms are also Wi-Fi is available throughout the campus sir. और एक मिथ और है सर IIM जम्मू का, लाइक वहां की सेफ्टी नहीं है सर, ऐसा मिथ है सर। वहां पहले पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स का भी यही मानना होता है कि जम्मू, दे आर रिलेटेड, they are relating the Jammu with Jammu and Kashmir sir. Yes, yes, yes. Those activities which are going in the Kashmir, they are relating with Jammu, but sir ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, जम्मू तो It is बहुत 100% safe place है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो जम्मू में बहुत मशहूर मशहूर कुछ जगहें हैं, उन कुछ जो जगहों के दो चार नाम बताओ हमारे सुनने वालों को। जैसे सबसे अच्छा तो सर, we are Indians and we focus on the religion sir. So अच्छा, Vaishno Devi is the हाँ, great वो thing sir. बेस कैंप है। या रघुनाथ मंदिर इन जम्मू इज आल्सो। Raghunath, yeah sir, the oldest temple Raghunath Mandir, and also sir there is a nearby place for अगर हम घूमने के लिए जाते हैं तो like there is पत्नी टॉप सर। यस सर, वहाँ बहुत अच्छी बर्फ रहती है सर, और देखने का नज़ारा बहुत जबरदस्त है। अभी विजिट करके आया था सर मैं फेब में। बट अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि आपने हाथ हिसार से एचयू से और आपने कैट में टॉप स्कोर लेके आई एम जम्मू में एडमिशन लिया, और यू आर आवर स्टूडेंट आल्सो, तो आपको क्या लगता है जो हम लोग मेंटर्स थे आपके, हमारे यस सर। जैसे मैं या और लोग जैसे थे, हम लोगों का कितना रोल है आपको इस मकाम पे पहुंचाने का? सर बात ये है कि मेहनत स्टूडेंट को करनी पड़ती है, बट टीचर्स जो होते हैं वो एक रास्ता दिखाते हैं, और आप लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है सर। बिल्कुल, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर कि आज उस रास्ते पे चल के मैं कामयाबी की ओर जा रहा हूँ सर। सो सबसे बड़ा रोल होता है टीचर्स का कि बच्चे को एक रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि बच्चे का माइंड, जो स्टूडेंट का माइंडसेट होता है, वो कभी इधर जाता है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं, बट टीचर है उसको जज करके। सो सर आपने हमें जज किया, हमें एक रास्ता दिखाया, और आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो दिस इज योर फर्स्ट ईयर, तो इस बार कोई इंटर्नशिप करेंगे आप?
Yes, sir. Internship is going on, sir. अच्छा, कहाँ पे कर रहे हैं? Internship Hyderabad based company है sir, Seeds Farm की. So sir, it is producing natural milk. It is selling natural milk to the farmers, to collecting from the farmers and selling to the customers, sir. B2C है. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया अभिषेक, इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू. और मैं समझता हूँ कि जितने लोगों ने अभी अभिषेक का इंटरव्यू सुना और पहले भी लोगों का सुना, तो आप इस चीज से समझिए, इन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि किसी छोटे स्कूल से पढ़ के किसी छोटे शहर से होने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के कॉलेज से वहाँ नहीं जा सकते. अभी बहुत बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करें और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी इनका होगा, बहुत अच्छी जॉब भी मिलेगी. तो ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू दिस, प्लीज understand what is Abhishek saying. Abhishek, आखिरी सवाल ये है, what advice will you like to give to the CAT takers जो अभी 2020 में नवंबर में CAT देने जा रहे हैं या 21 में देंगे, जो आपकी क्या एडवाइस है कि कैसे तैयारी? Sir, regarding the CAT preparation, so sir, मेरा ये मानना है कि consistency is most important. If you are consistent, then you can. The CAT is very easy, sir. And also, you have to change the thought process because CAT is common aptitude test, and any student can give it. It is not required that you have to be a higher level student, sir. So sir, CAT में होता है कि थॉट प्रोसेस क्रिएट करने का होता है और MBA में वही बच्चे जाते हैं जो क्रिएटिव होते हैं. So सर, मेरा ये मानना है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें. अगर 2 घंटे भी दिन में देते हैं तो दैट इज एनफ फॉर CAT, सर. एंड सर, अदर थिंग इज कि CAT के लिए मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है. एनालिसिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द CAT, सर. सो CAT को मॉक टेस्ट दीजिए जितने ज्यादा हो सकते हैं, उसको एनालाइज कीजिए. एनालिसिस पार्ट इज, अगर आप 3 घंटे मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 6 घंटे एनालिसिस पे लगाना बहुत जरूरी होता है, सर. यस सर, बिल्कुल सही बात. राइट अभिषेक, थैंक्स फॉर योर टाइम. आप इंटर्नशिप में बहुत बिजी हैं, बट वी आल्सो थॉट वी स्पीक टू यू. तो वी वर जस्ट टॉकिंग टू मिस्टर अभिषेक, जो कि सेकंड ईयर में जा रहे हैं अभी. आई एम जम्मू में. आपने उनकी बात सुनी. आई होप you will learn from this and get into IIMs like Abhishek has done. So that is all for today's Toppers Corner. Thank you, Abhishek. Thank you so much. thank you very much, sir.